Hello students, this is your physics teacher Shailesh sir from Maharshi Vidya Mandir, Fatehpur. Today we are going to start the second chapter of class 11th physics, that is units and measurement. Before starting this chapter, we have to know about the physical quantity. What is physical quantity? So physical quantity is a property of a material that can be quantified by measurement. Means with the help of measurement we can define a physical quantity. Now we consider that these are two objects, one is this and another is this. So that property which differs these objects is called physical quantity. Now what is the property? The property is the size of this object is this and the size of this object is this. So these objects are differ from their size. That's why that property which defines their size is called physical quantity, and that is also called length. So length is a physical quantity. So that property of material which can be quantified by measurement is called physical quantity, because the length can be measured with the help of meter, mass can be measured with the help of kg. So these all are physical quantities. So a physical quantity can be expressed with the help of unit and magnitude. What is unit and magnitude? Suppose we have a rod of length 5 meter. Then what is 5 and what is meter? 5 is numerical value, that is called magnitude, and meter is a unit of that physical quantity. So combination of 5 meter we can define the length of that rod. So any physical quantity can be expressed fully with the help of numerical value and unit. So what is unit? How can we define unit? The unit is a standard measure of a quantity. The standard measure means a fixed value of any quantity is called unit. Suppose 1 meter, then 1 meter is a fixed length and this is called unit. 1 kg, this is a fixed value of mass, so this is called unit. And magnitude represents that how many times the unit is contained in that physical quantity. Means if we consider that we have a rod of 5 meter, then meter is included 5 times in that physical quantity. So to understand the magnitude we consider an example. Suppose हम लोग जब कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े खरीदने के लिए हम बोलते हैं उससे हमें 5 मीटर कपड़ा दे दो. तो क्या करता है, एक मीटर स्केल लेता है और उसमें से मीटर स्केल को 5 टाइम्स इंक्लूड करके, मीन्स 5 टाइम्स उस मीटर स्केल से कपड़े को नाप करके आपको दे देता है. मीन्स उसने उस मीटर स्केल को उस फिजिकल क्वांटिटी में 5 टाइम्स इंक्लूड कर दिया. देन द नंबर ऑफ टाइम्स included that particular unit is called magnitude. So we take an example. Suppose एक रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है. तो अगर हम रॉड को मीटर में मेज़र करेंगे तो उसकी लेंथ 2 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे तो उसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर होगी. बट 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम यूनिट को डिक्रीज़ करेंगे, मीन्स स्मॉल यूनिट लेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा. बट द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज इक्वल. क्यों? क्योंकि लेंथ वही है 2 मीटर, बट अगर हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो अगर वो यूनिट स्मॉल है तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट U है, ये क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो
इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी अदर क्वांटिटी में डिपेंड ना करें, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन ना हो सके, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। और उस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। सपोज़ मास है, तो मास ये एक इंडिपेंडेंट है, मास को हम किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते। लेंथ है, लेंथ को हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। और उन सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई गई हैं, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, और लेंथ की यूनिट मीटर, यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ कैंडिला, एंड यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ मोल। These all are fundamental quantities and fundamental units. These all are fundamental quantities and these all are fundamental units. तो fundamental quantities के साथ साथ हमारे पास 2 अदर क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे ये प्लेन एंगल, इसकी जो यूनिट है वो रेडियन है। प्लेन एंगल क्या है? सपोज़ सर्किल है, तो सर्किल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की जो आर्क है, इस आर्क से इसके सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे, और उसकी जो यूनिट है वो रेडियन होगी। अब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? स्फेयर, स्फेयर के सेंटर में स्फेयर की कोई एक पर्टिकुलर सरफेस जितना एंगल ड्रॉ करेगी, उस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलेंगे और उसकी यूनिट स्टेरेडियन होगी। तो इसको याद रखेंगे, दिस इज़ 3D ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव की गई हैं। मीन्स किसी भी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकें तो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। सपोज़ एरिया है, तो एरिया जो है वो लेंथ की हेल्प से डिफाइन किया गया है, इसलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डेंसिटी, ये मास और वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, इसलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्लियर? देन द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। So meter square, kg per meter cube, these are the derived units. Now the next topic is some practical units used for measuring large distances. Then large distance measure करने के लिए हमारे पास ये 3 practical units हैं। Then first unit is light year. The distance traveled by the light in vacuum in 1 year is called light year. Suppose light is traveling in vacuum and in 1 second the light travels a distance 3 into 10 to the power 8 meter. So this is the speed of light in vacuum, 3 into 10 to the power 8 meter per second, and we have to calculate the distance traveled by the light in 1 year. So distance equals to speed into time. अब speed ये मालूम है आपको 3 into 10 to the power 8, और टाइम इन सेकेंड, 1 ईयर को हमें सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 ईयर में 365 डेज,
365 days into 24 hours into 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 लाइट ईयर का। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। So this is the 1 light year. Now the next is astronomical unit. Then it is the mean distance of Earth from Sun, and this value is equals to 1.496 into 10⁻11 meter. Now the next is parsec, and parsec is also called parallactic second. So it is the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. So we consider 1 astronomical unit is the distance between Earth and Sun. Suppose this is Earth and this is Sun. This distance is 1 astronomical unit, and we consider a distant point where the arc of this astronomical unit subtends an angle of 1 second is called one parsec. Then this is 1 parsec. Now the next topic is some practical units used for measuring time. So first is solar day. It is the time taken by the Earth to complete one rotation about its own axis with respect to Sun. Then the time taken by the Earth to complete one rotation about its own axis with respect to Sun is called solar day, and the value of one solar day is 24 hours. Now the next is sidereal day. Sidereal day, the time taken by the Earth to complete one rotation about its own axis with respect to distant star is called sidereal day, and the value of one sidereal day is 23.93 hours. Now the next is lunar month. It is the time taken by the moon to complete one revolution around the Earth. So this is the time taken by the moon to complete one revolution, and the value of one lunar month is 27.3 days. Now the next is shake, and this is the smallest practical unit of the time, and one shake is equals to 10 to the power minus 8 second. Now the next is some practical units for measuring mass. So first practical unit of mass is 1 ton, and the value of 1 ton is 1000 kg. Next is 1 quintal, and the value of 1 quintal is 100 kg. Next is 1 slug. Slug is a unit of mass. So 1 slug equals to 14.57 kg. Now the next is pound, and the value of pound is 0.4536 kg. Now the next is CSL. This is also called Chandrasekhar limit, and this is the largest practical unit of mass, and value of 1 CSL is 1.4 times the mass of Sun. This is the largest practical unit.
largest practical unit of mass. Now the next is indirect methods for measuring large distances, and first method is parallax method. So in parallax method, what is parallax? The apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sideways is called parallax. Then suppose हमने एक पेन लिया अपने सामने और उसको एक आंख से देखेंगे और फिर बिना पोजीशन चेंज किए हम उसी पेन को दूसरी आंख से देखेंगे तो दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट नज़र आएगी, हमको डिफरेंट अपीयर होगी। तो इसी पोजीशन में शिफ्ट को ही हम लोग पैरेलैक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लेफ़्ट आई और ये राइट आई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब हम लेफ़्ट आई से देखेंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे दिखाई देगी और जब राइट आई से देखेंगे तो इस तरफ से दिखाई देगी। तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा ये थीटा है और जिसको हम लोग पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। और आइज़ के बीच की डिस्टेंस इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको बेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी लार्ज डिस्टेंस में कोई भी प्लेनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टार है, तो उसकी डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज़ हमने अर्थ में एक पोजीशन ली, यहाँ पर ये मून है, मून की डिस्टेंस हमको मेज़र करनी है। तो अर्थ के ए पॉइंट से हमने मून को ऑब्जर्व किया और किसके रिस्पेक्ट में, एक मून से दूर कोई एक स्टार है उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा कि जब हम अर्थ से देखेंगे इस स्टार को तो ये हमको बिल्कुल सामने दिखाई देगा और मून की पोजीशन ये होगी। और जैसे ही हम यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आ गए तो ये स्टार भी आगे की तरफ हमको शिफ्ट होता हुआ अपीयर होगा और ये हमारे सामने ही रहेगा, बट मून हमसे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। क्यों, ये स्टार कैसे आगे हो गया भाई? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे हम लोग जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठेंगे तो हमारे जो पास वाले जो पेड़ होते हैं वो हमसे पीछे जा रहे होंगे। अगर हम ट्रेन में मूव कर रहे हैं तो पास वाले जो पेड़ हैं वो हमसे पीछे जा रहे होंगे, बट जो हमसे बहुत दूर पेड़ हैं वो हमारे साथ साथ आगे की तरफ मूव करते हुए अपीयर होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ देख रहे हैं। देखो इसमें जब हम इस ऑब्जेक्ट के पास में थे और इससे आगे मूव किए तो जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये स्टार जो कि बहुत दूर है ये तो हमारे साथ में चलेगा, बट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है कंपैरिजन टू दैट तो ये थोड़ा सा पीछे होता हुआ जाएगा, तो इसलिए इसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को हम लोग पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे और ये जो डिस्टेंस हमने अर्थ में कवर की इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको एक सिंपल सा बेसिक फार्मूला अप्लाई कर देना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा है, आर्क हमारी बी और रेडियस मीन्स डिस्टेंस तो एस हो गई। तो यहाँ से हम उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, बेसिस अपॉन एंगल। तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज radar method. So what is radar? The full form of radar is radio detection and ranging. Then we use some waves that are radio waves. यहाँ से हम लोग जब रेडियो वेव्स इसमें इस डायरेक्शन में इमिट करवाते हैं, जब रेडियो वेव्स ऐसे चलेंगी और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होकर के वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो अगर हम इसकी डिस्टेंस को x कंसीडर कर लें तो रेडियो वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट से जब रेडियो वेव्स मूव कर रही हैं तो हमको डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू फार्मूला वाला है आपको, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस एक बार यहाँ से वेव्स यहाँ जाएंगी और वापस आएंगे तो डिस्टेंस उसकी 2x हो जाएगी, 2x डिस्टेंस कवर करेंगे, स्पीड c और टाइम अगर हम t कंसिडर कर लें x इक्वल्स टू c इंटू टी अपॉन 2। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग
उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं रडार मेथड से। सो एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ लेज़र मेथड। लेज़र मेथड भी सेम प्रोसेस वर्क करेगा। लेज़र, यहाँ से हम लेज़र लाइट यूज़ करेंगे और लेज़र लाइट यहाँ से जब इसको इस डायरेक्शन में इमिट कराएंगे तो यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस x है तो क्या होगा, लेज़र लाइट यहाँ से चलेगी और इस ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो इसमें डिस्टेंस 2x कवर करेगी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम इसमें भी यूज़ होगा। तो स्पीड, अब ये जो लेज़र लाइट है ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेगी, तो इसको भी c इंटू टी लिखेंगे। स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी c इंटू टी अपॉन 2। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। अब नेक्स्ट मेथड है सोनार मेथड। तो सोनार मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सोनार मेथड यूज़ होता है जो सी में सबमरीन्स होते हैं। जब सबमरीन्स यहाँ सी में सपोज कर लें सबमरीन है और यहाँ पर एक सोनार लगा हुआ है, तो सोनार ये क्या वर्क करेगा, इसके अंदर जो रॉक्स हैं यहाँ से ये सोनार वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से सबमरीन इमिट करता है और रॉक में इंसिडेंट होने के बाद ये वापस रिसीवर में रिसीव कर ली जाती हैं। तो अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम x कंसीडर कर लें और स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर v, तो यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई होने वाला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अब एक बार यहाँ रॉक के पास जाएगा फिर वापस, तो इसमें 2x डिस्टेंस कवर करेगा। अब स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इसको हम v कंसीडर करेंगे इनटू t, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेंगे, स्पीड कुछ डिफरेंट होगी। वाटर के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, ये कुछ डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे। तो आ जाएगा x इक्वल्स टू v इंटू टी अपॉन 2। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से हमको डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है किसी भी मेथड से। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें से पहला मेथड था आपका पैरेलैक्स मेथड, दूसरा था राडार मेथड। तो राडार मेथड में राडार का फुल फॉर्म आपको मालूम है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एंड नेक्स्ट मेथड इज़ लेज़र मेथड। तो लेज़र मेथड में लेज़र का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रिपीट करते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये 4 मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the errors in measurement. So thanks to all of you.